Morning, everyone. I, Mr. Vaibhav Titramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, welcome you all in this 15th lecture. And today's topic for discussion is specification of steel. Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we learned about the tool steel. Tool steels are those steels which remove the material and use for making cutting tools. In previous lecture, we have also learned about stainless steel and its types. We know that stainless steel do not corrode. It is stainless. That's why it is called as the corrosion resistant steel and having more and more percentage of chromium. The learning outcomes of today's lecture are: after completion of this lecture, you are able to understand the specification of steel, identify the composition of steel. These are the program outcomes which are going to achieved by means of this lecture. Let us discuss the specification of steel. After steel has been designed for a specific application, the designer or the purchaser has to select the specific steel from those available in the market. जब कभी भी कोई प्रोडक्ट को हम डिजाइन करेंगे तो जो डिजाइनर रहेगा या फिर जो परचेसर रहेगा उनको अवेलेबल मार्केट से स्पेसिफिक स्टील को परचेस करना पड़ेगा. The steel are sold with a standard specification and associated notation. तो स्टील रहती है उनका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रहता है और उनके कुछ नोटेशंस रहते हैं. Some knowledge of specification is this thus essential. Therefore हमें स्टील के स्पेसिफिकेशन के बारे में पता रहना बहुत जरूरी होता है. The specification and the notation used for the steel vary from country to country, but each specification is based on certain criteria. जो भी स्टील रहेगा उसका जो स्पेसिफिकेशन है ये कंट्री टू कंट्री वेरी होगा, बट उनका जो क्राइटेरिया रहेगा वह एक समान रहेगा. The chemical composition, mechanical properties, hardenability, method of manufacture, nature of application are some criteria used. जैसे कि स्टील का जो भी केमिकल कंपोजिशन रहेगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, हार्डनेबिलिटी रहेगी, उसको प्रोडक्शन करने की मेथड रहेगी या उसका क्या एप्लीकेशन है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया है जिनके ऊपर हम स्टील को स्पेसिफाई कर सकते हैं. The majority of specification are based on the chemical composition of steel because it indicates to an experienced engineer the probable heat treatment to be given the steel and the corresponding mechanical properties obtainable from it. स्पेसिफिकेशन में मेजॉरिटी जो रहती है वह केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अलाइंग एलिमेंट्स का स्टील के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है. इंजीनियर को इससे यह भी समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर स्टील के ऊपर हमें किस प्रकार की हीट ट्रीटमेंट देना है. तो यह सब अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्सिमम टाइम हम स्टील को केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से ही स्पेसिफाई करते हैं. The designer could also easily choose the right steel matching the composition he had arrived at for a specific part or application. इसके वजह से जो डिजाइनर है जिसने कोई प्रोडक्ट को डिजाइन किया है उनके लिए
ये बहुत इजी हो जाता है स्टील को सिलेक्ट करने के लिए, राइट स्टील को सिलेक्ट करने के लिए जो उनको प्रोडक्ट के लिए लग रही है। In India, not only the knowledge of Indian standard specification is important, but with American and British standard is also essential as the designer or engineer come across the imported steel or he might have to import the particular steel. जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं उनको इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए और अमेरिकन और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के ऊपर भी उनका हैंड रहना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ स्टील फॉरेन कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं। देयरफॉर हमें ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन सभी स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। Let us discuss the commonly used method for specification of steel. First is Indian Standard Specification. There are two Indian Standard Specification. Number one is Code Designation based on Mechanical Properties. मतलब उस स्टील के अंदर किस प्रकार की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर हम इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। सेकंड है कोड डेजिग्नेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, उस स्टील के अंदर कितने कंपोजिशन, कौन सा मटेरियल किसके मात्रा में है उससे हमें पता चलेगा। द सेकंड इज AISI या फिर SAE स्पेसिफिकेशन। Third is British specification. So these are the most commonly used method for specification. चलो दोस्तों अभी हम इनको one by one पढ़ते हैं। Let us discuss the Indian Standard Specification. In Indian Standard Specification, for the purpose of code designation, the steel have been classified on the basis of properties and chemical composition. इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में हम स्टील को उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज कोड डेजिग्नेशन बेस्ड ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इट यूजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ फॉर डेजिग्नेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। अगर स्टील में कहीं पे Fe लिखा रहा तो उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² में है, ये हमको समझ में आ जाएगा। अगर स्टील के सामने Fe और E लिखा होगा तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm² और मेगापास्कल। तो दोस्तों ये बात आपने ध्यान में रखना है कि अगर Fe लिखा रहा तो इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ मेगापास्कल में, और Fe कैपिटल E लिखा रहा तो ये रहेगा यील्ड स्ट्रेंथ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक टेबल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा है Fe 210। तो हमने देखा था E मतलब क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ, तो इसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी रहेगी 210 न्यूटन पर mm², 210 मेगा पास्कल। अब यहाँ पे लिखा है स्टील कैपिटल E 250, इट इज मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे स्टील लिखा है देयरफॉर इट इज इन kg, और यहाँ पे Fe लिखा रहा तो इट इज इन न्यूटन, राइट, इट इज इन न्यूटन। अभी यहाँ पे सिर्फ Fe लिखा रहा है, Fe लिखा रहा तो क्या लिखा रहेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखिए Fe 310 K का मतलब क्या हो जाएगा, किल्ड स्टील विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 310 मेगा पास्कल। तो ये जो नंबर है 210, 250 और 310 ये स्ट्रेंथ दिखा जाएगा। अगर E रहा वहां पे तो वो रहेगा हमारा यील्ड स्ट्रेंथ, और अगर सिर्फ Fe लिखा रहा तो हमारा वो रहेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बात आपने नोट करनी है। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का सेकंड पार्ट है कोड डेजिग्नेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। The carbon content of the steel is specified as numerical figure
called the carbon point. जो स्टील में कार्बन का वैल्यू रहेगा वो हम कार्बन पॉइंट से दिखाएंगे, where 1 point of carbon is defined as 0.01%. एक पॉइंट जो रहेगा वो 0.01% रहेगा। अगर कार्बन स्टील में लेटर सी आता है तो उसका मतलब रहेगा कि वह प्लेन कार्बन स्टील है। वो कौन सी स्टील है? सी। सी अगर रहा, सी फॉर प्लेन कार्बन स्टील, यह बात अपने ध्यान में रखनी है। लेटर टी, अगर टी लेटर आता है तो समझ लेना है कि ये टूल स्टील है। टी फॉर टूल स्टील। आफ्टर द न्यूमेरिकल फिगर फॉर द कार्बन पॉइंट फॉर द प्लेन कार्बन टूल स्टील। अगर कंपोजिशन में आपको टी दिखता है तो इट इज अ टूल स्टील, अगर आपको सी दिखता है तो इट इज अ प्लेन कार्बन स्टील। A numerical figure following the letter C or T indicate 10 points the average percentage of manganese content. अगर आपको C और T के बाद कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर कोई नंबर वहां पे लिखा हुआ मिलता है तो वह मैग्नीज का कंटेंट रहेगा। अगर T के सामने 20 लिखा हुआ है तो इट इज ए 0.2% ऑफ मैग्नीज। अगर टी के सामने या सी के सामने 50 लिखा हुआ है तो वह रहेगा 0.50% ऑफ मैग्नीज। आई होप यू। ये एक चार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C15। सी माने कार्बन, प्लेन कार्बन, जिसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? 0.15%, राइट। देखिए अभी यहाँ पे दिया है 30C3, 30C5। सो 30 मतलब कार्बन इज 0.30, और हमने देखा था सी या टी के बाद में जो भी रहेगा दैट इज मैग्नीज, तो 0.5% मैग्नीज, राइट। आपने उसको 10 से डिवाइड करना है क्योंकि 10 पॉइंट्स रहेगा। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 37Mn2। सो 37 है Mn के पहले तो ये 0.37 रहेगा, और Mn के बाद 2 है तो 2% मैग्नीज रहेगा। फिर है यहाँ पे 55 mm75। सो 55 मीन्स 0.55% कार्बन और मैग्नीज रहेगा 75। 75T12, 75T12। सी कार्बन का परसेंटेज रहेगा 0.75 और मैग्नीज रहेगा 12 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.2 से, ठीक है, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2। ये 75 टू एमएसबीटी में आया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ कार्बन के कंपोजिशन या स्टील के कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है और उसको याद कर लेना है और उसको करके देखना है। डेली आपने एक एक याद करना है, क्योंकि पेपर में इससे 2 कंपोजिशन आएंगे और 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो आपने इसको डेली 1-1 एक आपको ऐड और लर्न करना है, ओके, और समझना है क्या चेंजेस वहां पे हो रहे हैं। तो ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्पेसिफिकेशन, दैट इज अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट एंड सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, दैट इज AISI और SAE स्पेसिफिकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। The American Iron and Steel Institute and Society of Automotive Engineer London has cooperated together and thus has evolved the similar specification based on chemical composition of the steel। तो ये जो AISI और SAE जो है, इन्होंने भी जो स्पेसिफिकेशन बनाया हुआ है यह केमिकल कंपोजिशन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। The specification normally have 4 numerical digits, in some cases 5. One of the following letter is prefixed to indicate the method used in steel making. SA specification do not have letter prefix, but omission of the letter prefix assume that the steel is made in open earth। देखिए यहाँ पे हमें 4 स्पेसिफिकेशन दे रहेंगे, 4 नंबर दे रहेंगे, कभी कभी 5 भी रह सकते हैं। अगर SAE में नंबर नहीं रहता है तो उसका आपने अज्यूम करना है कि वो ओपन अर्थ परनास में बनाया गया है। देखिए
अगर वहां पे ए नाम आता है तो दिस इज अ अलॉय स्टील जो बेसिक ओपन अर्थ फर्नास पे बना हुआ है। B is the carbon steel that is acid Bessemer furnace. C is the carbon steel basic open earth furnace. D is the carbon steel acid open earth and E is the electric furnace steel. तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल AISI CXXXX is the basic open earth carbon steel due to letter prefix C. देखिए यहाँ पे लेटर कौन सा आया C। C मतलब क्या होता है कार्बन स्टील बेसिक ओपन अर्थ, तो इसका ये मतलब होता है। Of the numerical digits, the first digit from the left indicate one of the following type of the steel. तो जो डिजिट्स रहेंगे उनसे लेफ्ट से पहला जो डिजिट्स रहेगा वो क्या इंडिकेट करेगा वह हम देखने वाले हैं। जैसे टेबल देखिए, अगर उस 4 डिजिट में के पहला डिजिट अगर 1 रहा तो ये कार्बन स्टील रहेगा, 2 रहा निकेल स्टील, 3 रहा तो निकेल क्रोमियम स्टील, 4 रहा तो मॉलिब्डेनम स्टील, 5 रहा क्रोमियम स्टील, 6 रहा क्रोमियम वैनेडियम स्टील, 7 रहा टंगस्टन स्टील और 8 रहा निकल क्रोमियम मॉलिब्डेनम और 9 रहा तो सिलिकॉन मैग्नीज स्टील। ऐसे डिफरेंट नंबर्स रहेंगे 1 to 9। अगर पहला अक्षर रहा 1 से 9 के बीच में तो आपको ये अज्यूम करना है कि जैसे फर्स्ट रहा तो कार्बन, दूसरा रहा तो निकेल। इसको भी आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है। The second digit from left for the simple steel element in the steel. अभी हम सेकंड डिजिट के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड डिजिट था हमारा, हमने पहला डिजिट तो दिखलाया, अभी सेकंड डिजिट जो देखते हैं वह हमें टाइप ऑफ स्टील के बारे में बताएगा। क्या बनेगा वो? टाइप ऑफ स्टील के बारे में वो हमको बताने वाला है। और ये कौन सी मेथड से हो गया था वो आपको बता रहा था, बराबर है। ये जो चार्ट अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टील है जिनका AISI स्टील स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे देखिए हमने अभी देखा कि कार्बन स्टील अगर रहा तो देखिए पहला अक्षर जो रहेगा वो फर्स्ट नंबर का 1 रहेगा। अगर निकेल स्टील रहा तो देखिए नंबर रहेगा 2, बराबर है। निकेल क्रोमियम रहा तो नंबर रहेगा फर्स्ट वाला, थर्ड नंबर रहेगा, बराबर है। मॉलिब्डेनम रहा तो 4 और क्रोमियम रहा तो 5, बराबर है। तो इस प्रकार से फर्स्ट डिजिट आपको वो ये बताएगा कार्बन, निकेल, निकेल क्रोमियम, वैनाब्डिनम और क्रोमियम स्टील, बराबर है। अभी सेकंड डिजिट देखिए, टाइप ऑफ स्टील। सेकंड डिजिट क्या बताएगा आपको? टाइप ऑफ स्टील बताएगा, बराबर है, जो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा हुआ है। The last specification is British specification. British specification for steel used to be designated by letter EN followed by a number. जो ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन है उसमें EN नाम से शुरुआत होती है और उसके सामने एक नंबर लिखा हुआ जाता है। The number has no relationship with either the composition or mechanical properties of the steel. उसका कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के साथ कोई भी रिलेशन रहता नहीं है। The new British system BS 970 uses the first 3 digit for the content of alloying element followed by letter A, H or M, which means analysis based, A for analysis based, H for hardenability based and M for mechanical property based specification respectively. The last 2 digit after this letter is meant for the carbon point. और इसके बाद के जो 2 लास्ट डिजिट रहेंगे वो कार्बन की मात्रा बताएंगे। जैसे कि En2 it means carbon 0.20, En3 carbon 0.30। ठीक है दोस्तों। So these are the unit outcomes we are achieved. Identify the given fields of steel on iron carbon diagram with justification and select relevant steel for the given application with justification. इस लेक्चर में हमने स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टील के बारे में पढ़ा और इनके जो 3 स्पेसिफिकेशन है, इंडियन स्पेसिफिकेशन, AISI और SAE
एंड इट स्पेसिफिकेशन। हमने ये जो तीनों मेथड्स है ये हमने इस लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ी, और दीज आर द आउटकम्स जो हमने अचीव किए इस लेक्चर को पढ़ने के बाद। So let us discuss the question asked in MSBT. So these are the 6 questions which are regularly asked in MSBT. That is meaning of specification of steel, list of methods of specification of steel, and these 4 question number 3 to 6 are regularly asked in MSBT, right? So you have to learn the basic concept regarding this. Thank you very much guys. In next lecture we are going to study about steel use for specific applications, right? So best of luck and thank you very much. Keep learning. Happy learning.